Okay, so sorry I got delayed, guys, because because I somehow was not getting the option of going live on Facebook for some strange reason. So we were trying to figure out all the technicalities, and then finally I hope I'm live on the correct page. I also have a personal page, so I hope this is not happening there. So I'm waiting for my team to tell me that we are on the right page and everything is okay. You guys can hear me, see me, and there's no glitch here. And once I have more people join in, I'll tell you what I am doing today. All right. Yeah, I've been, I'm coming, I'm doing this live after a long time on Facebook. Sometimes one just gets so used to doing a live on Instagram that, you almost forget that there is an option of doing a live on Facebook as well. And I absolutely love and adore my Facebook family. I get so many wonderful comments and I'm always responding to them. But कई बार ऐसा होता है कि मेरे दिमाग से ही निकल जाता है कि Facebook पे भी live कर सकते हैं. Right, lots of you are here. Hello everyone. Hello Rini, hello ADA, hello Mitali, hello Nidhi. Good to see all of you here. So, COVID का समय चल रहा है and I know we are all going through a lot of stress. Frankly, I think ये बोलने की भी ज़रूरत नहीं है. I think there is a gloom that has surrounded all of us. And इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ simple किया जाए. कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि आपके घर में आप क्या एवरीडे क्या आपके घर में खाना बनता है, क्या बेसिक सब्जी दाल बनती है जो आपके घर वालों सबको बहुत पसंद आती है. इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक सीरीज स्टार्ट करूं फेसबुक पर जिसका नाम होगा मेरे घर का खाना. एंड आई एम गोइंग टू शो यू certain recipes which have kind of been going on in our house for years and years, and I thought why not share this with you. So आज यही करने वाली हूँ. I really want to know if this is the right page that I am on because I'm not getting a message from my team. Am I okay? You guys can tell me, am I on my verified Facebook page? Are you all seeing me on my Facebook page or is this my private page? I think one of you can help me over here before I start the recipe. Hi Rajni, hi Kajal. Okay, so at least I'll tell you all, आज मैं मटर पनीर बनाने वाली हूँ. It's a very simple recipe and somehow मटर पनीर को भी बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया है सब लोगों ने. एंड ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना कोई हवा है इसे बनाना. एक्चुअली एक बात बताऊं, हमारे घर में भी ये हवा है बिकॉज मेरे फादर इन लॉ को एक पर्टिकुलर टाइप का मटर पनीर अच्छा लगता है एंड माई सन हैज जॉइंड दैट बैंडवैगन नाउ. उसे भी एक पर्टिकुलर टाइप, तरी ऐसी पतली होनी चाहिए, मटर के कलर ऐसे ही होने चाहिए, विच रिमाइंड्स मी, हाँ मटर है बाहर, पनीर ऐसा ही ये साइज का होना चाहिए. सो इट्स वेरी फनी कि एवरीबडी हैज अ वेरी टिपिकल in my house very typical way in which मटर पनीर should be made. तो ये मटर पनीर अगर उस तरह से ना लगे जिस तरह से मेरे फादर इन लॉ और मेरे बेटे के एक्सपेक्टेशंस हैं तो मतलब गवंडर बन जाता है घर में. एंड मेरा बेटा तो मटर पनीर सुबह शाम रात हर दिन खा सकता है, हर समय खा सकता है. He really loves it. So without much ado, well, nobody has told me if I'm on the right page, but lots of you are here. So I'm just going ahead. जिस भी पेज में हूँ, at least I'm live. I will be sharing this on Instagram and on my other pages. So you guys will see it. तो फिलहाल let's start making मटर पनीर. जो मेरे घर का मटर पनीर है वो मैं आज बनाने वाली हूँ. तो ये पनीर आज मैंने बाहर का ही लिया है. उसे पानी में हमेशा इस तरह से पानी में पूरा डुबा के रखना होता है. मैंने अभी थोड़ा पानी फेंक दिया बिकॉज आई डिडंट वांट कि जब मैं आपको निकाल के दिखाऊं तो सारा पानी गिर जाए. सो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम ये पनीर काटते हैं. दे आर यूजुअली बिग चंक्स ऑफ पीसेस. 250 ग्राम्स पनीर के साथ मैं आज बना रही हूँ.
यूजुअली मेरे घर में तो आराम से आधा किलो पनीर का बन जाता है, क्योंकि लाइक आई सेड एवरीबडी लव्स इट. सो इसे मैं एक बार काट लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से कितने बड़े पीसेस मैंने इसके बनाए हैं. Okay, so nice fresh paneer. Here I'll show you a cube. It's basically this big. Okay, तो इतना बड़ा ये पीस है पनीर का. नाउ पनीर साथ साथ में काटूंगी और यहाँ पे मैं क्या करूंगी कि कढ़ाई तब तक चढ़ा देती हूँ. सो बेसिक कढ़ाई, इसके अंदर मैं घी डालूंगी. यस, ये जो हमारे घर का मटर पनीर है वो घी में बनता है. ओके, आई definitely know something is amiss. I can see all of you joining, but I cannot see your comments, which I am just going to put on. I think there is something which I need to click to get the comments. Rajni, Harmeet, I can see all of you here. You know, ये जब update हो जाता, oops, can you see my drawing all over because I have done something. हाँ, ये डिलीट कर देती हूँ. I have no idea what I'm doing, but it's okay. Okay, this is my option of joining people, which I can do later. This is my option of comments, which I can write, but I'm not. Okay, it's going to come to me. So यहाँ मैंने गैस ऑन कर दिया है. Let's get with the recipe and then I'm going to start taking your questions. So my team will send me the questions on another gadget. So घी मैं ऐसे हमेशा ऐसे स्टील के बर्तन में रखती हूँ. तो nice generous amount of ghee will go in here. Not too much also, but yeah, enough to fry the paneer. So this is not getting deep fried. ये जो पनीर है ये डीप फ्राई नहीं हो रहा है, ये हल्का सा शैलो फ्राई हो रहा है. तो इसे हम शैलो फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसी कढ़ाई में मैं इसका जो ग्रेवी है वो प्रिपेयर करूंगी. ठीक है. सो ये आपको एक बार फिर से दिखा दूं. ये पनीर कट गए हैं, नाइस चंकी पीसेस. संजना, थोड़ा सा शांता को फोन करो या मिताली को बाबा के फोन से, और उनको बोलो कि वो कमेंट सेक्शन नहीं आ रहा है तो उसको कैसे करना है. ठीक है. सब लोग दिख रहे हैं मुझे. सो अब जैसे ये घी गरम हो जाएगा उसमें मैं ये पनीर फ्राई कर लूंगी, शैलो फ्राई कर लूंगी. अगेन लाइक आई सेड इट हैज टू बी शैलो फ्राइड. और फिर इसमें पड़ेगा बहुत बारीक कटा हुआ प्याज. अब आप प्याज को ग्राइंड करके भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी मदर इन लॉ के हिसाब से अगर ग्राइंड करके यूज करते हैं तो ग्रेवी थोड़ी ज्यादा थिक हो जाती है. एंड मैंने क्या बोला था, मेरे फादर इन लॉ को पतली पतली ग्रेवी चाहिए. ओके, इट इज वेरी इरिटेटिंग. अभी आप लोग, कई लोग कहते हैं अरे दे आर वेरी क्यूट, योर फादर इज वेरी क्यूट, दे आर द क्यूटेस्ट पीपल, बट ओ माई गॉड, अगर एक चीज पे दिमाग बैठ गया तो बस बैठ गया. सो इट्स वेरी फनी हाउ दे आर वेरी वेरी स्टक on certain things that they want in a certain way. तो anyway, for those who have joined in now, मैं बना रही हूँ मेरे घर में जिस तरह से मटर पनीर बनता है उसे बना रही हूँ. वेरी वेरी सिंपल वे. यहाँ मैंने पनीर के क्यूब्स काट लिए हैं और उन्हें मैं शैलो फ्राई करने के लिए डाल दूंगी. थोड़ा सा आज गर्म हो जाए उसके बाद, एंड फिर इसी कढ़ाई में मैं मसाले को बनाऊंगी. तो मैं आपको मसाले के लिए दिखा रही थी प्याज, इसे हम भून लेंगे और उसके बाद इसमें जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है which makes it absolutely amazing and gives you that amazing flavor, वो है लौंग. ओके, तो ये हम इसमें करीब 4 to 5 क्लोव्स डालेंगे, लौंग के पीसेस डालेंगे, एंड उससे जो खुशबू आती है और जो फ्लेवर आता है ना, क्या बताऊं. ओके, सो चलिए ये पनीर डाल देते हैं. घी गरम हो रहा है एंड वी वांट अ नाइस लिटिल कलर. कई लोगों को लगता है नहीं, मटर पनीर बनाने समय पनीर हार्ड हो जाता है, लेकिन ये जो हमारा तरीका है उससे बिल्कुल हार्ड नहीं होता है. एंड इन फैक्ट इट
you know, it gets a little crispiness from the outside, थोड़ा सा कलर भी आ जाता है, and अंदर से it's absolutely soft and melt in your mouth. Yes, संगीता जी भी ठीक है सब कुछ? अच्छा, okay. काले वाले या फिर स्टील के भी चलेंगे? कौन सा वाला? ये वाला स्टील वाला ले लो, वो मेरा काला वाला भी है। ये थोड़ा जेंटल है इसलिए आपको ये बेटर होता है। हाँ, आपको ही नहीं दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। कमेंट्स भी दिख रहा है, ठीक है। तो as long as you guys can see everything, it's fine because there's something clearly wrong with my this thing, and उनको बोलना कि जो important questions हैं वो यहाँ भेज दें मुझे, तो मैं उधर से पढ़ के address कर दूँगी नाम से, ठीक है? So don't worry, I will address your questions. I'll get it on my other phone, rather my husband's phone. This is when husbands come handy. Okay, तो ये अभी यहाँ पे इस तरह से मैंने डाल दिया है. You can see it. ये अब हल्के से फ्राई हो रहा है, and we have to be very gentle with it. तो I like to use tongs क्योंकि उससे फिर मैं उसे आराम से दूसरे साइड टर्न कर सकती हूँ, and I don't put too much pressure on it. ठीक है, तो ये जैसे ही फ्राई हो जाएगा उसके बाद मसाला बनेगा. मसाले में पड़ेगा कांदा, प्याज, जो हम कांदा मुंबई में बोलते हैं, और फिर इसमें मैंने करीब 3 टमाटर, आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, आप मिक्सर ग्राइंडर में भी उसे ग्राइंड कर सकते हैं. तो ये 3 टमाटर उसमें पड़ेंगे, 2 से 3 डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड डिपेंडिंग ऑन आपको कितनी ग्रेवी चाहिए. ठीक है, तो वो इसमें पड़ेगा. एंड यहाँ मैंने एक प्लेट रख लिया है विद एन एब्जॉर्बेंट पेपर. साथ में मैं ना थोड़े से पुलाव आपको दिखा रही हूँ. बेसिकली ये राइस ऑलरेडी बॉइल्ड हमेशा ज्यादातर लोगों के घर में रहते हैं, तो अगर आप इस तरह से एक डिश बना रहे हो तो फिर लगता है अरे साथ में क्या बनाया जाए. पराठे भी इसके साथ बहुत अच्छे जाते हैं, लेकिन घर पे पड़ी हुई चीजों के साथ आप एक बेसिक सा मजेदार सा पुलाव भी बना सकते हो, जो मैं इधर आपको बना के दिखाऊंगी. एंड आई विल शो यू दैट हाउ यू कैन सर्व दिस विद द मटर पनीर. हाँ जी, ओके. पायल दे पूछी घी गुड है कि नहीं बच्चों के लिए. इज घी गुड फॉर किड्स? Yes, of course, घी is very good for kids. It's good for adults. It's good for kids. It's excellent. It's very good to lubricate your bones. मेरे तो pediatrician हमेशा बोलते हैं कि घी is very very good. Of course, how much घी? That's the point. अगर जैसे मैंने करीब I think 2 tablespoon घी लिया होगा. अब ये पूरे घर के लिए ये डिश बन रही है. ठीक है, सब इसमें से थोड़ा थोड़ा लेंगे. सो बच्चे के अंदर कितना जाएगा? नॉट इवन अ टीस्पून और सो, विच इज परफेक्ट, राइट. अगर आप बहुत ज्यादा घी में डीप फ्राई करके उसको बार बार घी को यूज करेंगे, देन ऑब्वियसली इट्स नॉट द यू नो द मोस्ट डिजायरेबल थिंग टू डू. ओके, a lot of people are saying that I look beautiful. Thank you. I don't think today I am looking very beautiful, but आज बेसिक घर के कपड़ों में मैं हूँ और बेसिक घर का खाना आपको दिखा रही हूँ कि कैसे बनता है. जस्ट वेटिंग कि अच्छा सा कलर आ जाए पनीर में, और फिर ओह ये देखिए, इसका मैं वेट कर रही थी. आपने देखा ये क्या बढ़िया सा कलर आया है. सो ये कलर जब सारे पीसेस में आ जाए तो देन यू आर सपोज टू टर्न इट अराउंड. तो बस इट्स कमिंग, इट्स जस्ट हैपनिंग इन अ लिटिल व्हाइल. तो थोड़ी थोड़ी देर में अगर ज्यादा पनीर सॉफ्ट हो, जो ये काफी पनीर सॉफ्ट है, तो चांसेस ऑफ इट ब्रेकिंग आर देयर, बट दैट्स ओके, डजंट रियली मैटर बिकॉज बेसिकली यू गेट द flavor of it. So my team is calling me. Let me see what's happening. Yes. Ha, tell me. Ha, tell me. No, that was earlier. So we've got Mitali is sending me the questions. I'm live while talking to you. Okay. I don't know. All right. So this is what happens, and that is why I love these lives. Archana says, ma'am, will you add boiled mutton? No, I'm adding frozen mutton today because मेरे घर में पड़े थे. इसे मैं बस थोड़ा से पानी में डाल देती हूँ and ये खुल जाते हैं. लेकिन अगर आप पनीर के साथ जब आपको मटर डालना हो, और अगर आप फ्रेश पनीर यूज करेंगे
तो यस, आप बॉईल करके भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक और बहुत अच्छी ट्रिक है, आप ये मटर पनीर फिर आप कुकर में बना सकते हैं। जब आपने मटर डाल दिया, सब मसाला पक गया, तो बस कुकर का ढक्कन बंद करके 3 सीटी दे दीजिए, मटर भी पक जाएंगे, पनीर भी अच्छे से प्लम्प हो जाएगा एंड इट टेस्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो जब घर में फ्रेश मटर आते हैं, जब सीजन पे होते हैं और फ्रेश मटर आते हैं, तो हम हमेशा हाँ, उसके वजह से हो रहा है ना, हाँ, उस पे डायरेक्ट हवा आ रहा है, इसीलिए उसका फ्लेम ये नहीं हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। सो किसी ने पूछा, विजय ने पूछा कि आज आप क्या बना रही हैं। मैं बना रही हूँ मटर पनीर, जिस तरह मेरे घर पे बनता है बिल्कुल उस तरह से बना रही हूँ। सो आई होप यू लाइक दिस रेसिपी बिकॉज इट इज क्वाइट नाइस। सो फॉर ऑल दोज पीपल हु जॉइंड इन अगेन, मटर पनीर, मेरे घर का मटर पनीर, ये सीरीज मैंने फेसबुक पे आज से शुरू की है, जहां पे हम बना रहे हैं, मैं रादर आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी रेसिपीज जो मेरे घर में बहुत पॉपुलर हैं और जो मेरे घर आते हैं लोग, उन्हें बहुत अच्छी लगती है और मेरे घर वालों को भी बहुत अच्छी लगती है। ऑलराइट, तो अब ये पनीर में कलर आ गया है। आज पनीर थोड़ा छोटा मैंने काट दिया तो वो पकड़ में नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर मैं अभी इसे टर्न कर दूंगी। ये सारे एक बार टर्न कर दूं तो आपको मैं इसका कलर दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा कलर आ गया है, कुछ में आए हैं और कुछ में नहीं आए हैं, सो आई एम जस्ट चेकिंग दैट। एंड वंस दिस पनीर इज डन, लाइक आई सेड, इसी घी में और इसी पैन में मैं जो बाकी की रेसिपी है उसे इसी में फिनिश करूंगी। सो देयर इज नो झंझट ऑफ washing too many pans as well. अब क्योंकि तुमने उसका वेंट उधर किया है ना, तो अब डायरेक्ट ताप आ रहा है। ओके, दो 3 पीसेस अभी भी हैं जिनमें कलर आने हैं। So this is the only one little tricky part where you have to ensure कि पनीर जले नहीं. You get that nice amazing color and you also ये मेरे घर का बेल है जो आपने सुना अभी। ये देखिए, आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा कलर आ गया है। आपको दिख पा रहा है, देख पा रहे हैं आप? लवली। सो ये जो है, ये पनीर का बढ़िया कलर एक साइड से आ गया। आई एम गोइंग टू ट्राई एंड गेट द सिमिलर कलर ऑन द अदर साइड, और फिर उसे मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी एंड देन मसाला बनना आएगा। उसमें बहुत कम टाइम लगता है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल इन दैट, बड़ी जल्दी हो जाता है। इन द मीन टाइम आई एम गोइंग टू सी व्हाट आर द क्वेश्चंस। माया, प्लीज शो सम जैन रेसिपीज। ओके, दिखाऊंगी वो भी जैन रेसिपीज। हमारे घर में तो हम पंजाबी हैं, तो प्याज और गार्लिक हमारे घर में काफी यूज होता है, but definitely I'll show you some Jain recipes. Mehreen says you have a charming personality. Thank you. Gomal says love your positivity. Well, इस टाइम पे सिमरन is saying where is Rosie? Rosie दीदी गाँव चली गई और उसकी अब शादी होने वाली है। I think she left about 3-4 months ago. अब मेरे पास संजना दीदी है जो यहाँ बैठ के स्माइल कर रही है। ये आती नहीं है, मैंने कितनी बार इनको बोला है कि कैमरा पे आओ, सबको हेलो बोलो। ये मेरी सारी दीदियाँ बड़ी शाय है, बट दे आर माई फैमिली एंड आई लव देम वेरी मच। Can you also love me? No. I trouble them a lot. So, okay, lovely. This paneer is looking superb. तो कई लोग कहते हैं कि मटर पनीर बनाने के लिए पनीर बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, रबरी हो जाता है। तो दैट इज द खेल ऑफ ओवर कुकिंग पनीर। पनीर आफ्टर ऑल प्रोटीन होता है, राइट? अगर आप उसे ओवर कुक कर देंगे तो वो नेचुरली रबरी हो जाएगा। एंड ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ पनीर मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप घर पे भी पनीर फाड़ के बना सकते हैं, और बाहर से लाए तो इंश्योर कि पनीर ज्यादा पुराना ना हो, और यू नो जस्ट बेसिकली इट्स फ्रॉम अ नाइस प्लेस सो दैट यू कैन enjoy a good soft paneer in your house. Alright, but this is almost done. थोड़ा सा मैं फ्लेम बढ़ा देती हूँ, हल्का सा इसमें और कलर आ जाए, and then this is good to go.
ओके, तो लाइक आई सेड दिस इज द ओनली थिंग दैट टेक्स टाइम। एंड अगर संजना दीदी इधर आती मुझे हेल्प करने तो मैं राइस शुरू कर देती, पर ये आएंगे नहीं कैमरा के सामने बिल्कुल भी। सब मेरे घर में कैमरा शाय है, कुछ कैमरा शाय और किसी को, जैसे मेरा बेटा है कैमरा में एकदम परफेक्ट है, लेकिन इतने मुझे उसके हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं टू गेट हिम ऑन स्क्रीन की मैं क्या बताऊं। बहुत नाटक करता है, कभी कभी तो मुझसे पैसे मांगता है कि आप मेरे से ये काम करा रहे हो, नाउ यू हैव टू पे मी for it. Saloni House Agastya, I just spoke about him. He is well. He's just done a very bad art assignment and uploaded it. मैं देख के घबरा गई, मैंने कहा I really pity his teachers बेचारा, पर क्या करें, किसी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं who are not good in art, so you have to just deal with it. Payal says my son is 11 years old, थोड़ा fatty है, so what kind of breakfast I can give him? सबसे पहले तो आप अपने बच्चे को फैटी बोलना बंद कीजिए, बिकॉज आई नो मैंने भी अभी कुछ ऐसा ही किया। मैंने भी अपने बेटे को कहा कि ओ यू नो ही इज नॉट गुड इन आर्ट, सो आई थिंक इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। यू नो putting children down is not the right thing to do, because they are who they are, and to a great extent they are who they are because of the genes that they are born with and the way we bring them up, right? So I don't think we should judge them. So मैं आपको बताती हूँ। तो अभी मैं पहले ये जो पनीर है ये हो गया, अब एक बार फिर से कलर दिखा दूँ। All those people who miss, it's looking absolutely stunning. मैं ये मसाला शुरू कर देती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ आपके बेटे के बारे। तो यहाँ अब मैं जेंटली ये पनीर को निकाल लूंगी एंड ये मसाला है उसे चढ़ा दूंगी। ओके, तो जस्ट अ सेकेंड। पनीर और घी का जो मेल है वो इतना अच्छा है, इट्स लवली कॉम्बिनेशन, एंड अरोमा इतना अच्छा इसका आता है, पूरा घर भर जाता है इसकी खुशबू से। ओके, तो यहाँ आपने देखा मैंने इसे एक एब्जॉर्बेंट पेपर में निकाल लिया है ताकि जो भी थोड़ा एक्सेस घी इसके अंदर हो वो निकल जाए। तो अब जो घी पैन में पड़ा है उसी में हम मसाले को तैयार करेंगे, राइट? सो हियर यू गो, दिस इज द पनीर जो आ गया है। आई थिंक नाउ यू कैन सी द कलर नाइसली। सो इसे मैं अभी साइड में रख देती हूँ, और इसमें जो एक दो थोड़े से पनीर के पीसेस तो नहीं, जस्ट लिटिल क्रम्स रह गए, उसे निकाल लूंगी। एंड देन आई विल स्टार्ट द मसाला। तो अब इस मसाले में क्या होगा, स्टार्ट होता है ये बहुत बारीक कटे हुए प्याज के साथ। तो आप एक बड़ा प्याज ले लीजिए या दो मीडियम साइज के प्याज ले लीजिए। आई हैव फाइनली चॉप्ड इट, एंड अभी मैंने इंस्टाग्राम पे एक लाइव किया था तो मैंने सबको बोला था, और इनफैक्ट पूछा था कि क्यों मैं प्याज लाइव पे नहीं काट रही हूँ। आई थिंक एवरीबडी नोज द आंसर टू इट, बिकॉज मैं आपके सामने रोना नहीं चाहती। तो ये प्याज मैंने पहले से ही रेडी कर लिए हैं, तो इसे मैं डाल देती हूँ एंड इसे अब हल्का सा मैं पकने दूंगी, जस्ट टिल इट इज नाइस एंड ट्रांसलूसेंट। ठीक है, तो ये जैसे ही इसका कलर चेंज होगा आई विल शो यू what it is, and in the meantime I'll take in some questions. How to make paneer at home, मैंने दिखाया हुआ है how to make paneer at home, and it's very easy. Basically आपको दूध बॉईल करना है and फिर उसमें आप नींबू डाल सकते हैं या विनेगर डाल सकते हैं, and very gently you have to curdle it, and फिर जो वे है, जो वहां पे संजना बैठ के मुझे डरा रही है, मैडम गैस कुछ नहीं है, गैस में कोई टेंशन नहीं है, गैस थोड़ा हाई रखा है मैंने जान के ताकि जल्दी मसाला बन जाए। तो ये अभी ट्रांसलूसेंट हुआ नहीं है, बट गुड, कीप एन आई। थैंक यू संजना दीदी। ओहो, ये मेरे हस्बैंड का जो ये लॉक है ना, इट्स वेरी इरिटेटिंग। मैंने तो अपने सारे फोन्स के, सारे तो नहीं, एक ही फोन है मेरे पास, मेरे अपने सारे गैजेट्स के लॉक निकाल दिए, बिकॉज आई कैन नॉट बेयर टू पुट अ पासकोड, इट जस्ट इरिटेट्स मी टू मच। एनीवे, शो सम नॉन वेज रेसिपीज। ठीक है, आई तो लव नॉन वेज, लेकिन जब मैं नॉन वेज बनाती हूँ सब बोलते हैं वेजिटेरियन बनाओ, तो अगली बार कुछ नॉन वेज बनाती हूँ। आप मैसेज करके बताइए व्हाट इन पर्टिकुलर डू यू वांट टू सी। मेरे घर का दही चिकन अमेजिंग है, धनिया चिकन भी अमेजिंग है, लाल मांस तो आई थिंक मैंने रेसिपी भी शेयर की हुई है आपके साथ। तो पर मटन को लाइव बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज मटन टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू कुक, बट वी कैन कंसिडर डूइंग दैट। सो यहाँ पे
प्याज हो रहा है. प्रीति मल्होत्रा, प्लीज गिव मी इवनिंग स्नैक ऑप्शंस फॉर माय 7-year-old. Sorry, I have to go back to that lady who said, sorry Payal, I did not finish your question. 11 years old, थोड़ा fatty है, please fatty मत बुलाइए बच्चे को, because it's not nice to name them such, give them such definitions. What kind of breakfast should I give him? अगर आप non-vegetarian हैं तो I will urge you to increase his protein intake, because कई बार क्या होता है कि ज्यादा ग्रेन खाने से, और सुबह हम क्या दबा के पराठे या रोटियां और ये सब ज्यादा खा लेते हैं, और जो अंडा है हाई क्वालिटी प्रोटीन है, पनीर है, टोफू है, ये सब चीजों, चिकन है, इन्हें हम इग्नोर कर देते हैं. सो आई वुड अर्ज यू टू इंक्रीज योर प्रोटीन इनटेक इन योर चाइल्ड, एंड आई वुड ऑल्सो अर्ज यू कि रात को थोड़ा सा हैवी खाना कम कीजिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बच्चे को दौड़ाइए, उसे दौड़ाइए. अगर जगह नहीं है तो जगह पे उसे मेक हिम और हर डू स्किपिंग, थोड़ा सा लेग रेजेस. मैं काफी सारे वीडियोस अपने अगस्त्य और राहुल के शेयर करती रहती हूँ, सो यू कैन हैव अ लुक एट दोज वर्कआउट वीडियोस फॉर चिल्ड्रन एंड यू कैन डेफिनेटली ट्राई देम. ओके, सो हियर इस तरह से ये प्याज हो गया है. यू कैन सी इट्स अ लिटिल ट्रांसलूसेंट, एंड ट्रांसलूसेंट मतलब हल्का सा ट्रांसपेरेंट. इनफैक्ट मेरे एक फ्रेंड ने अभी रिसेंटली, वो भी शेफ हैं, शेफ इरफान, उन्होंने एक बड़ा ही मजेदार तरीका यूज किया एक्सप्लेन करने का कि ट्रांसलूसेंट का क्या मतलब है. मैं बताती हूँ आपको. अभी मैंने करीब 5-6 लौंग इसमें डाल दिए हैं, एंड अब इसे हल्का सा और पकने देंगे बिफोर आई एड सम जिंजर टू इट. तो जिंजर स्लाइस किया हुआ है मैंने यहाँ पे, एंड उसे मैं डाल दूंगी. इनफैक्ट आई कैन पुट इट नाउ इटसेल्फ. 4-5 स्लाइसेस of ginger goes in, and इसे थोड़ा सा पकने देंगे before I add the tomato to it. तो ground tomato जो मैंने यहाँ पे रखा है, 3 टमाटर रहेंगे, इसे मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, उसे मैं इसके अंदर डाल दूंगी. हल्का सा ये लौंग की खुशबू आनी शुरू हो गई है, एंड जिंजर की भी. इट्स अ लवली हेडी अरोमा. ये लाइट पे ऑन कर देते हैं. हाँ, तो ये अगर आपको अच्छे से आई होप दिख रहा है. ओके, सो Payal, I hope I have answered your question about dealing with your child's weight issues, but do not make it a huge priority. Just try and deal with it with patience. Patience के साथ उसे handle कीजिए ताकि ज़्यादा problem ना हो. Somebody had asked for 7-year-old बच्चों के लिए स्नैक्स के आइडियाज. मैं काफ़ी सारे बच्चों की रेसिपी शेयर करती रहती हूँ. इनफैक्ट मैंने एक बहुत ही मज़ेदार प्लेलिस्ट बनाई है, टॉडलर ट्यूसडे. ऑल्दो ये नाम टॉडलर्स का है, लेकिन ये जो रेसिपीज हैं आप बच्चों को भी बड़े बच्चों को भी खिला सकते हैं. सो 7-year-old कैन ईजिली ईट हैव दोज रेसिपीज. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू चेक दोज रेसिपीज आउट. अब मैं टमाटर डाल रही हूँ, एंड टमाटर डालने के बाद इसमें एक बार मसाले डाल दूंगी. तो ये देयर यू गो. मेरा येलो ड्रेस मुझे प्लीज एप्रन दे दो, मैंने एक्चुअली निकाल के रखा था. तो अब मैं अपना एक एप्रन पहन रही हूँ. इनफैक्ट ये लॉकडाउन हो गया, वरना आई वॉज गोइंग टू लॉट ऑफ यू हैड आस्क्ड मी अबाउट दीज एप्रन्स. दीज आर माई पर्सनलाइज्ड एप्रन्स, सो आई वुड हैव लव्ड टू शेयर देम विद यू, बट अभी क्योंकि लॉकडाउन हो गया है तो the whole production has stopped. So unfortunately, hopefully by next year you will have access to these aprons. ये मैंने फ्लेम थोड़ा बढ़ा दिया है. हल्का सा इस टमाटर को हम पकने देंगे before I add a little मसाला to it. इसमें बस 4 मसाले जाएंगे. बेसिकली सॉल्ट तो जाएगा ही, और उसके साथ जाएगी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर. ओके, तो बस यही जाता है इसके अंदर, नथिंग एल्स. तो ये अब हल्का सा पकने लगा है. एंड टमाटर के साथ आप नोटिस करिएगा, जब भी आप टमाटर डालोगे मसालों में, उसका जब ग्रेवी बनाना शुरू करोगे तो वो उड़ उड़ के आपके ऊपर आएगा. इसलिए मैंने एप्रन तैयार किया हुआ था, पर उसके पहले ही मैंने अपने कपड़े खराब कर लिए. तो अब अंदाज से मैं नमक डालूंगी, एंड थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, और ये कश्मीरी लाल मिर्च है जो प्यारा सा कलर देती है बट डज नॉट गिव द हीट. ऑलराइट, और फिर इसमें
1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। ओके, एक मिनट में जरा हाथ धो लूं, अपने बाल को हाथ लगाया था अभी। सो हियर यू गो, डन। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। एंड यहाँ पे मैं पानी उबालने रखा हुआ। हाँ हाँ, तो पानी रखा हुआ उसके अंदर उबालने के लिए। नहीं, ठीक है, मैं डाल देती हूँ, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं पानी उबालने के लिए डाल रही हूँ। यू कांट सी मी इन फ्रेम बट आई एम हियर टॉकिंग टू यू ऑल। तो ये एक बार गर्म हो जाएगा पानी तो इट्स क्विकर टू यूज इट। सो आई पुट इट इन द केटल, और केटल को मैंने ऑन कर दिया है। तो जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा, आई शो यू हाउ द मसाला इज लुकिंग बिफोर आई, बंद कर दूं, बिफोर आई, दिस इज द वे इट्स लुकिंग। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी। इसे अच्छे से मिला के थोड़ा सा गैस कम कर दूंगी और इसे ढक दूंगी। और उसके बाद जब पानी डालूंगी तो फिर उसे, यू कैन हियर द वाटर बॉईल, यू कैन ऑलरेडी हियर दैट। सो वंस इट बॉइल्स, it's going to be added into this gravy. All right. Pooja Kuara says, my daughter is very choosy. She doesn't like fried foods, even parathas. Please suggest something. Okay, so most children are fussy. Most children don't like things that we make on a regular basis. Most children want junk food. तो इसीलिए यहीं पे मेरा मैजिक काम आता है, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि आप जंक फूड को झूल में टर्न कर सकते हैं बाय थोड़ा सा इनोवेशन, थोड़ी सी क्रिएटिविटी। अगर बच्चा ज़्यादा फंसी है तो इंश्योर दैट द प्रेजेंटेशन ऑफ द फूड इज अमेजिंग। तो फॉर एग्जाम्पल, उसे अगर रेगुलर पराठा पसंद नहीं है, आप पिज्ज़ा पराठा ट्राई कीजिए। आप रेगुलर पराठा बनाइए, उसमें मोज़रेला चीज़ डालिए, थोड़े से टॉपिंग्स डालिए, कॉर्न डाल सकते हैं, बेल पेपर्स डाल सकते हैं, बिल्कुल जिस तरह से पिज्ज़ा लगता है। और उसमें आप थोड़े से इटालियन सीजनिंग डाल सकते हैं एंड उसे ढक दी। आई थिंक मैंने ये रेसिपी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मेरे यूट्यूब चैनल पे है, बीइंग अमृता शेफ एंड बियॉन्ड उसका नाम था, पर अब मैंने अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड उसका नाम कर दिया, बिकॉज कई लोग कहते थे कि हम बीइंग प्रोनाउंस नहीं कर सकते। सो ऑल्दो दिस इज हाउ इट हैड स्टार्टेड, बट नाउ इट इज Amrita Raichand, Chef and Beyond. So you can please go on to my YouTube channel and also subscribe to it, guys, because subscription बिल्कुल free है। आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसके बगल में नोटिफिकेशन का बटन भी आता है, वो भी दबाइए। तो every time I upload a new video, you will be able to see that. So I would urge you to see all these videos and DM me. आप Instagram पे भी मुझे DM कर सकते हैं, Facebook पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ सारे मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करने की। Want to know my recipe for chocolate brownie, Saloni? You will have to pay me for that. I'm just kidding. मेरी chocolate brownie actually बहुत ही famous है and काफ़ी अच्छी भी है। In fact, again lockdown के पहले मैं सोच रही थी कि start करूँ ताकि लोगों को मिल सके, but let's see. I might share it here. All right. Chicken biryani Nancy wants. ठीक है, chicken biryani बना सकते हैं। Try करती हूँ next time we can try कच्चे गोश्त की बिरयानी where I use chicken instead of mutton because mutton takes a lot of time. या फिर टाइम को बचाने के लिए we can even do a cooked chicken and then mix it with the rice. We can do that. धनसा पारसी स्टाइल, अच्छा पारसी स्टाइल रेसिपी आपको एक पंजाबी से सही चाहिए, ठीक है, why not? We can try that also. But let me tell you, जो धनसा का आपको एक अच्छा पारसी बना के खिला सकता है वो एक सरदार भी नहीं, but we can always try it. तो यहाँ पे ये जो टमाटर है ये अच्छे से पक रहे हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। ओके, जितना मुझे ग्रेवी चाहिए वो मैं डाल रही हूँ। आई शुड हैव शोन यू द मसाला बिफोर, बट नेवर माइंड। वो बेसिकली थोड़ा सा घी उसका सेपरेट हो जाना चाहिए और आपको वो दिखना चाहिए, उसके बाद पानी अंदर जानी चाहिए। सो वो मैं आपको दिखाना भूल गई, बट okay, let me bring this to you because वो जब मैं सामने कर रही हूँ तो you can't see it. Can you see the beautiful color of this gravy? So this is the way it is looking. But अभी इसे in fact I wish I can
Should I get you? How do I get you closer? आपको वो एक रिंग दिखेगा, थोड़े से घी का जो लेयर है वो साइड में आपको दिखेगा, एंड यू नो कि मसाला अच्छे से भून गया है. सो दैट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट. अगर मसाला आप अच्छे से नहीं पकाएंगे, भूंजेंगे नहीं, तो वो अमेजिंग फ्लेवर नहीं आएगा. सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट यू भूंजाओ द मसाला प्रॉपरली. ऑलराइट, तो Deepa says, what else is your specialty as far as vegetarians are concerned? And dahi chicken recipe, please. Yes, my dahi chicken is superb. मैं share करूँगी. What else is my specialty? अगर आप घर के खाने के बारे में पूछ रहे तो believe it or not, तुरई हमारे घर में बहुत अच्छी बनती है. तो वो भी मैं एक दिन शायद आप लोग को बना के दिखाऊं. And all those people are saying, oh, तुरई, because I know my own teammate says that when I talk about तुरई. But जो घर की तुरई होती है वो बहुत ही अच्छी होती है. और क्या क्या हमारे घर में अच्छा, हमारे घर में जीरा आलू बहुत अच्छे बनते हैं, सूखे आलू, और बहुत सारी डिशेस हैं. इनफैक्ट मेरी मदर इन लॉ इज अ फैबुलस कुक. सो वो, पर उनको किचन में ज़्यादा आना अच्छा नहीं लगता. बोलती मैंने पूरी ज़िंदगी मैंने किचन में बिताई है, सबको खाना खिला के, अब तू संभाल किचन, यू नो. सो इट्स लिटरली बिकम लाइक दैट. बट शी इज़ अ फैबुलस कुक. तो आई कीप लर्निंग अ लॉट ऑफ राजस्थानी स्पेशल्स फ्रॉम हर. She makes the most amazing khata. She makes the most amazing maas. बस 2 दिन पहले उन्होंने सफ़ेद मटन बनाया था, which was absolutely divine. तो हाँ, घर का खाना अच्छा तो बन जाता है. लेकिन अब मैं, ये बहुत ज़्यादा उबल रहा है, तो मैं क्या करूँगी, I wanted to पको फ्राई properly. तो मैं इसे ना छोटे आंच में डाल देती हूँ. I'll just transfer it here. एंड इसे बंद कर देती हूँ. यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ फटाफट हाउ यू कैन पुट टुगेदर अ पुलाव. ओके, तो जब तक वो भी हो जाएगा, और यहाँ पे आई शो यू कि इमीडिएटली आप कैसे वेजिटेबल पुलाव. तो अगर आपके घर में वेजीज हैं तो यहाँ मेरे पास थोड़े से कैरेट हैं. मैं बीन्स डालना चाहती थी, पर बीन्स आज यूज हो गए बीन्स आलू बनने में, तो मैं इसी से थोड़े से बीन्स निकाल के डाल लूंगी. एंड राइस तो जैसे मैंने कहा बॉइल्ड सबके पास पड़े रहते हैं. मटर जाएगा पारसी बन गई. देखिए मैं बैठे बैठे, तेल कहाँ है? हाँ, यहाँ पे है. आप एक सेकेंड. तो ये थोड़ा सा तेल इसमें डाल दूंगी मैं, हल्का सा. और इसमें मैं ना पुलाव के लिए मैं अक्खा थोड़े से गरम मसाले ले लूंगी. सम ब्लैक पेपरकॉर्न्स, सम दालचीनी, सम इलायची एंड सम तेज पत्ता. तो वो मैं डाल के इसे हल्का सा पका के फिर उसमें वेजीज डालूंगी, राइस डालूंगी. आई जस्ट गिव इट अ टॉस विद अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड योर पुलाव इज रेडी. ऑलराइट, सो वो यहाँ पे मैं करती हूँ. एंड यू कैन सर्व इट विद दिस मटर पनीर विच इज अ फैबुलस कॉम्बिनेशन. हाय मिताली छाबरिया, हाय वसन, हेलो गुरप्रीत सिंह, रोशल रुबेलो, हेलो करीना साइनी, हेलो ज्योति बजाज, भानुप्रिया, नाइस टू सी यू ऑल. शिल्पा, पुष्पा, रजनी, हरमीत बामरा, पूजा जायसवाल, अनीशा अमू, so good to see all of you here. Avani Boyar, Divyani Gupta, Priyam Thakur, hi. Momita Mazumdar, hello, nice to see you. I'll also take some questions while the oil is getting heated. आप अच्छी माया सिंह मैम, आप कब कब लाइव आते हो? कम प्लीज लेट अस नो. सो भाई, कभी कभी तो मैं प्लान करती हूँ और कभी कभी नहीं प्लान करती हूँ. इनफैक्ट नेक्स्ट वीकेंड मदर्स डे है, राइट, वी ऑल नो दैट. तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट वीक मैं हर दिन एक लाइव करूंगी. एंड यू नो किस टाइम पे करूंगी वो मुझे भी नहीं पता. I may do a breakfast live, I may do a lunch live, I may do an evening live. But live के थोड़े देर पहले मैं definitely आप सबको notify कर दूंगी. And hopefully you will be able to catch me there. So here I'm just adding some खड़ा मसाला to it, to the oil जो गरम हो चुका है. एक तेज पत्ता, चम्मच उसके लिए नहीं है, कौन सा? अच्छा वो जीरा कहाँ है? हाँ, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं जीरा भी डालूंगी. पुलाव में जीरा टेस्ट एब्सोल्युटली लवली. एंड जैसे ये थोड़ा क्रैकल होने लगे, आई एम गोइंग टू ऐड माय वेजीज टू इट. आई एम गोइंग टू ऐड सम कैरेट्स. मैं जरा सा ये जो ग्रेवी है इसका जो फ्लेवर है वो चेक कर लेती हूँ, सीजनिंग भी चेक कर लेती हूँ.
अभी पकना थोड़ा बाकी है, पानी रिझा नहीं है अंदर, पानी के अंदर अच्छे से मसाला भुन चले जाना चाहिए, which has not happened yet. Now I'm adding some carrots. Okay, I'm adding some carrots to this, and like I said, क्योंकि बीन्स नहीं थे घर में तो मैं बीन्स, आलू के जो बीन्स है वो यूज करूंगी, लेकिन उसे मैं एंड में डालूंगी बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव अ लिटिल कलर एंड अ लिटिल टॉस टू माई राइस फर्स्ट, क्योंकि बीन्स ऑलरेडी पके हुए हैं तो फिर उसे और पका देंगे तो यू नो इट्स गोइंग टू गेट वेरी वेरी मशी, तो वो मैं बाद में डालूंगी, थोड़े आलू भी पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑलराइट, सो नाउ आई एम एडिंग द राइस टू इट. डाल देती हूँ. इसमें आप चाहें तो हल्की सी हल्दी कलर के लिए डाल सकते हैं, बट आई एम गोना अवॉइड इट बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ फ्लेवर इन माय मटर पनीर. नाउ आई एम गोना ऐड सम ऑफ दिस लिटिल beans aloo to this. It's also going to add to the color. तो इस तरह से आप लेफ्ट ओवर खाना भी यूज कर सकते हैं. And just see how pretty in a few seconds the pulao is looking. Isn't it looking lovely and colorful? बस this is done. हल्का सा इसे और हीट पे रहने देते हैं. And in the meantime, I'm going to add the mutton to my मटर पनीर का ग्रेवी. I'm going to bring you close, or rather I'll bring the dish close to show you how pretty this is looking with the green mutton, and ये जो beautiful red color आया है वो कितना प्यारा लग रहा है. So yes, my pulao is completely done. इसे मैं किस में निकाल रही हूँ संजना दीदी? हम लोग उस डिश में निकाल रहे हैं ना, ठीक है. So जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं, काफी लेट हो गए हैं आप बाय द वे, बट स्टिल आई विल टेल यू दैट आई एम मेकिंग मेरे घर का मटर पनीर विद अ लिटिल बिट ऑफ पुलाव, वेजिटेबल पुलाव, व्हिच आई हैव जस्ट टॉस्ड इन एब्सोल्युटली नो टाइम. Aisha, oh, there's somebody who actually loves turai. Thank you, Atisha, for loving paneer. Loving turai. Which cooking utensils are best for cooking? Also healthy. Which oil are you using? Sunimal says, please show me some Bengali recipes. Oh, by the way, do you know that मैं बंगाल में काफ़ी बड़ी हुई हूँ. मतलब मैं Calcutta is literally like my second home. In fact, मैं वहाँ स्कूल भी मैंने ज्वाइन किया था, Lama Tenure, and then my father passed away unfortunately. So my mother took posting in Tisco itself, but in Dhanbad. But Dhanbad में भी कई Bengalis मेरे neighbors थे, in fact जिन्हें मैं अपनी literally second mom कहती हूँ. She is like my second mother. She was my dance teacher. She is my dance teacher. She is also Bengali. तो काफ़ी Bengali food खा के मैं बड़ी हुई हूँ. So I absolutely love it. But you want to see those recipes? Let's try them. We'll make some nice mustard prawns or mustard fish. And let's see how that turns out. All right, Aradhana, are the carrots boiled? Yes, they are parboiled. I've used parboiled ones. Which brand of basmati did you use? So funny. आज ही हमारे घर में ये conversation हो रहा था. In fact, मैंने आपको बताया ना कि मेरे father in law बहुत फंसी है, तो वो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा राइस यूज करना चाहिए, कौन सा बेटर होता है. तो वो कह रहे थे कि हमारे एक फ्रेंड हैं जो GM थे ताज के, उनको फोन करके क्यों नहीं पूछते हैं. तो मैंने कहा डैडी यू प्लीज स्टे आउट ऑफ इट, आप अपना बिजनेस संभालिए, हम अपने राइस को संभाल लेंगे. तो आई थिंक फाइनली व्हाट रियली मैटर्स इज कि क्या आप डिश बना रहे हैं. पुलाव और बिरयानी के लिए यू नीड लॉन्ग ग्रेन राइस लाइक दिस. सो यू कैन यूज एनी ब्रांड ऑफ बासमती. इट हैज टू बी नाइस एंड लॉन्ग ग्रेन लाइक दिस. ओके, इसके बारे में जरा सीजनिंग भी चेक कर लूँ. हाँ, इट्स परफेक्ट. तो और जैसे अगर आप अगर थाई करी फॉर एग्जाम्पल बना रहे हैं तो उसके साथ यू नीड जास्मिन राइस, विच इज मोर क्रीमी, मोर स्टार्ची. एंड अगर आप कोई बंगाली डिश बना रहे हो तो उसके साथ या फिर आप खीर बना रहे हो तो जैसे गोविंद भोग राइस होता है, जो छोटे थोड़े मोटे राइस होते हैं, उनका ज्यादा मजा आता है. सो आई थिंक इट रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर मेकिंग. नाउ एनीवे आई एम एडिंग द पनीर टू माई ग्रेवी. आराम से इसे हम ऐड कर देंगे.
Just give it a little stir. Gently इसे handle करना है. I'm going to move it closer so that I can handle it better. And then I'm going to again cover it up a little bit, ताकि वो जो मसाले की जो खुशबू है, जो फ्लेवर है, सारा वो पनीर के अंदर अच्छे से सीप हो जाए. Alright, so that's what I'm doing. Yes, should we do it in that thing? Okay, we can do it in that also. Alright, so for all those people who have very sweetly joined in here, one last time I will tell you that मैं अपने घर का खाना मैंने आज बनाया है. अपने घर में जैसे मेरे घर में मटर पनीर बनती है, बिल्कुल उसी तरह से आपको दिखाया कि मटर पनीर कैसे बनती है. Right from scratch. It's a really easy way of making it, but there are a few magic ingredients that make all the difference. So once this is done, which it is almost done, I'm just going to chop some fresh coriander leaves. इसे अच्छे से धो लेना होता है. आजकल बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली सैलेड पत्ते वगैरह, कोई भी सब्जियां अच्छे से किसी वेजी वॉश में या फिर थोड़े से विनेगर में उसे ज़रूर धो के यूज़ करें. ओके, सो वेरी दिस थिंग. कई लोगों ने मुझे पूछा था कि कोविड के लिए क्या रेसिपीज हो सकते हैं. कोविड से अगर आप अनफॉर्चुनेटली गुजर रहे हैं तो आई थिंक रियली इंपॉर्टेंट टू हैव घर का खाना, सिंपल खाना, हाई प्रोटीन फूड, विच इज what I have made today. जितना आप सिंपल रखेंगे उतना अच्छा रहेगा. And that is why I have started this whole series. I hope you like it. And अगर आपके पास कुछ ऐसी suggestions हैं recipes के, so you can definitely let me know what else do you want me to see. So give me that dish please. ये वाला, हाँ हाँ डाल दे. ठीक, अब मैं ये बस मटर पनीर बस बन गया है. Just in the end, I like to add a little छोटा सा pinch of sugar. In fact, जब टमाटर का जो ग्रेवी है वो तैयार हो जाए, आप उस समय भी डाल सकते हैं. पर मैंने आपके साथ बातें करते करते मैं भूल गई, तो यहाँ संजना दीदी ने मुझे याद दिलाया कि आपने चीनी नहीं डाला, तो अब मैंने डाल दिया है. नो प्रॉब्लम, बिकॉज चीनी जो है it just kind of brings out the flavors, the salt. It acts as it opens up the flavors like you say. तो थोड़ा सा just a little pinch of sugar. and पुलाव को मैं इसमें डाल दूं. अच्छा, इसमें सर्व करेंगे, ठीक है. नहीं वो तो ठीक है, लेकिन पहले इसमें डाल देते हैं ना, फिर उसके बाद सर्व कर लेंगे. So here, तो पुलाव is a very, the way we say Punjabis na, पुलाव, it's a very funny way of saying it. So here I have added my pulao to a serving dish. This is nice Friday night dinner. Yes, it's vegetarian, but hey, it's lovely. इस पे भी थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं. धनिया तो किसी भी चीज़ पे आप डाल दो तो बहुत अच्छा लगता है. एंड फ्लेवर और उसका जो खुशबू है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है. तो ये वेजिटेबल पुलाव घर में बना है, जो जस्ट I've used some carrots, beans, आलू की सब्जी, उबले हुए राइस, just added a little खड़ा मसाला to it, and there it was ready. तो इसे मैं साइड में कर देती हूँ. And now I will remove in another dish the मटर पनीर. इसे इधर साइड कर दो, केयरफुल, गरम. And there, this is done. A final check of seasoning and taste with a fresh spoon. So don't panic. जो पहले मैंने spoon use किया था वो यहाँ पड़ा हुआ है. I've noticed कि कई लोग ये छोटी छोटी बातों को लेके बड़े ये हो जाते हैं, sensitive हो जाते हैं, and they check you with it, which is nice. We all have to be careful when we are cooking. So I'm going to do a little tasting and make you jealous. Hi Saloni, Rampal, hi Avinash, Hari. You can see me bite into my matar paneer. I bet you my father-in-law will approve of it. It's perfect. Rasa ekdam perfect hai iska. It's not very thick. Now I have to just remove it in a bowl, which I am going to do with here. All right. So इसे बस मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ.
काफी भर गया। How pretty it looks, nice and green and yellow, and थोड़ा सा इसके ऊपर garnish of some freshly cut coriander leaves, and you, मेरे घर का मटर पनीर तैयार है। आप देख रहे हैं इतनी अच्छी इसकी खुशबू तो आप नहीं समझ सकते, पर धुआं आप देख सकते हैं, एंड धुआं इतने अच्छे से आ रहा है, एंड ट्रस्ट मी इट्स नॉट दैट टफ। मैं तो आपके साथ गुफ्तगू करते करते मैंने ये से बनाया। अगर आप जस्ट फोकस करके बनाएंगे तो जस्ट 15-20 मिनट्स ये बन जाएगा, और साथ साथ में आप और भी चीजें साइमल्टेनियसली बना सकते हैं, विच इज वॉट most of us homemakers do, don't we? Right? So thank you so much. Everybody has loved the recipes, so that is very, very sweet of you to enjoy the live. Thank you for enjoying it. Thank you for joining in. Sorry I could not directly see all your comments. I'll figure out what went wrong with this, with the settings. कुछ तो हुआ है। Like I said, बहुत दिनों के बाद मैंने Facebook लाइव किया, तो ये Facebook मुझे पनिश कर रहा है कि in fact, like I said, शुरू में भी I was finding it difficult to connect through it, but good that you guys joined me. एक बार फिर से आपको दिखा दूं, this is the matar paneer that we have made. I will be sharing this recipe, and I will also be sharing sharing this video on Facebook. अगर जिन्होंने भी मिस किया वो देख सकते हैं, and on Instagram and on Twitter. And this is the veg pulao, and I'm ready for my Friday night dinner. What are you doing? So send me your feedback, send me your messages, and let me know how you enjoyed this. And हम बहुत जल्दी मिलेंगे कुछ और घर के खाने के साथ, और आप messages भेजते रहिए कि आपको क्या देखना। Love you guys. Bye. Stay safe. Stay healthy, and I'm praying for everybody who's suffering. That goes without saying. It's just that suffering or sadness की बातें हम कर सकते हैं, लेकिन it's better कि हम positive बातें करें, खुश रहने की कोशिश करें, अपने घर में जो भी situation है उसका best बनाएं, थोड़े से अच्छे खाने बनाएं, simple खाना, इसमें कोई फैंसी नहीं है। आई नो अभी आजकल लोग ज़्यादा फैंसी खाना बनाने के मूड में भी नहीं है, इसलिए बेसिक घर का खाना, सिंपल खाना अगर अच्छे से बना जाए तो वो भी बहुत ही स्वाद होता है। सो दैट्स व्हाट इज द मिशन ऑफ दिस सीरीज। आई होप यू एंजॉयड इट, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून। बाय।